Good morning students. Computer subject standard 9. Student, in previous video we already completed chapter number 2. Chapter number 2 we discussed about the generation of a computer based on a hardware as well as a software. There are 5 different generations based on a hardware as well as software. So many changes are developed in a डे टू डे जनरेशन और जनरेशन बाय जनरेशन. ठीक है, एक से दूसरे जनरेशन में सो मैनी वेरिएशंस आ गए हैं, डिफरेंसेस आ गए हैं. वो हार्डवेयर में है तो भी और वो सॉफ्टवेयर में है तो भी. सॉफ्टवेयर में भी वी लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन. फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन, assembly language, mnemonics in second generation, third generation we start a high level language, fourth generation we start a database language SQL, and fifth generation we are founding a artificial intelligence C. So there are so many vast difference and so many development and researches in a computer field. Now they are the history of the computer. We also know the different type of famous computer. For example, mini computer, microcomputer, supercomputer, hybrid computer, wearable gadgets, wearable computers, smart watch like a. ठीक है, ये सब हमने देख लिया था सेकंड चैप्टर में. Now we move on थर्ड चैप्टर. Today we learn standard 9 computer subject, chapter number 3, input and output devices. Is very simple and very interesting chapter. Input and output devices. You know very well what are the devices are compulsory for a computer system. It's a single name computer, but when we say computer system, we have 4 main devices are compulsory. For example, keyboard when we enter a data, monitor we can see result, or we can also, it's called a display or a screen, we also call a screen. Third device is mouse, and fourth is the main is CPU. There are the 4 main components of the computer system. So devices is like a peripheral or a wires to convey a data or electricity. We discuss about some input devices and some output devices. Some are compulsory and some are additional. For example, input device keyboard is compulsory, but scanner is not compulsory. क्लियर है, कीबोर्ड मुझे कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, पर स्कैनर कंपलसरी नहीं है, वो एडिशनल है. जैसा मेरा वर्क है उसके हिसाब से मुझे मेरे गैजेट्स, मेरे डिवाइसेस लेने पड़ेंगे. ठीक है. व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर, इट इज कंसिडर्ड एज इनपुट. व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड रिजल्ट, इट इज कंसिडर्ड एज अ आउटपुट. The devices that allow such input or output are known as input-output devices or peripherals. ठीक है. Give data and instruction through any part. Physical. Called input devices. उसको हम क्या बोलेंगे? Input devices. Okay? And give result from computer is called output. Is called output. So what is the devices? It is a input, output, wires or peripherals. ठीक है.
इनपुट आउटपुट पैराफेरल्स मीन्स ऐसे वायर्स जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास ऑन होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन और ऑल्सो डेटा पास ऑन। ठीक है, डेटा भी उसमें जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जाती है। वायर्स में से डेटा जाता है ऐसा नहीं बोल सकते, पर वो कंप्यूटर को इनपुट देता है, मतलब सीपीयू को अलर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे पैराफेरल्स है जिसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइसेस, गैजेट्स। क्या बोलेंगे, डिवाइसेस और गैजेट्स। देयर आर टू मेन डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, two main devices. First is input device. फर्स्ट इज इनपुट डिवाइस। ठीक है, कितने हैं मेन, टू मेन डिवाइसेस है, उसमें सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, जिससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। when we give a data, when we enter a data, when we call input a data, those process is the input process। ठीक है, हम डेटा देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, इनपुट प्रोसेस। ठीक है, वो डेटा चाहे सिंबल में हो या टेक्स्ट में हो या इमेज के फॉर्म में हो, एनी हाउ फॉर्म। ठीक है, पर हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम उसको डेटा देते हैं, हम उसको डेटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं। वो सारे डिवाइसेस जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं, वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइसेस। एंड इनपुट डिवाइसेस इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इज माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है, मोस्ट फेमस इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, कीबोर्ड एंड सेकंड इज माउस। कौन से हैं, कीबोर्ड एंड माउस। When we use keyboard, then we say press key, and when we use mouse, then we say click। ठीक है, जब हम माउस यूज करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्लिक। पर जब कीबोर्ड यूज करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रेस। एंटर की प्रेस एंटर की, प्रेस एस्केप की, प्रेस लेफ्ट एरो की, प्रेस कंट्रोल की, ऐसा हम बोलते हैं। और जब माउस का यूज करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, राइट क्लिक को 2 टाइम, राइट क्लिक को प्रेस करो, लेफ्ट क्लिक 2 टाइम प्रेस करो, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, प्रेस करो नहीं, क्लिक करो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिक करो। तो जब माउस होता है तब हम क्लिक वर्ड यूज करते हैं, और कीबोर्ड होता है तब हम प्रेस वर्ड यूज करते हैं। तो कीबोर्ड और माउस दोनों कैसे हैं, दोनों हमारे बेसिक इनपुट डिवाइसेस है। कैसे है, बेसिक इनपुट डिवाइसेस। विदाउट दिस हम कंप्यूटर सिस्टम में काम नहीं कर सकते। इवन हमारे पास अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में स्मार्टफोन भी आ गए हैं, स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, स्मार्ट लैपटॉप्स भी आ गए जिसके टच थ्रू। ठीक है, टैबलेट भी आ गए जिसमें कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, पर आप टच स्क्रीन तो यूज करते हो ना। ठीक है, आपको माउस की जरूरत नहीं है, पर आप टच स्क्रीन तो यूज करते हो ना। तो मतलब माउस और कीबोर्ड का कॉम्बिनेशन टच स्क्रीन में डाल दिया है। ठीक है, हमें वर्चुअल कीबोर्ड भी मिलते हैं कि जैसे आप क्लिक करो वो टेक्स्ट बॉक्स में तब कीबोर्ड एक्टिव हो, ऐसे वर्चुअल कीबोर्ड्स भी मिलते हैं। पर कीबोर्ड तो होने ही चाहिए, एनी फॉर्म। ठीक है, लेटेस्ट जो कीबोर्ड है हमारे ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर में, वो वायरलेस भी आने लगे हैं। ठीक है, उसमें वायर नहीं होता, वायरलेस कीबोर्ड मतलब वाईफाई थ्रू वो कनेक्ट कर सकते हैं हम हमारे सीपीयू के साथ विदाउट वायर। ठीक है, तो ऐसे भी कीबोर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड डिवाइस। A keyboard allows entering the alphabets, digits, symbols and special key and also a functions key। ठीक है, जनरली कीबोर्ड हैव अ मोर देन 100 keys। ठीक है, कितनी होती है, मोर देन 100 की। सबसे पुराना जो कीबोर्ड है उसमें कितनी की थी, 100 की। पर उसमें भी थोड़े चेंजेस आते गए तो उससे ज्यादा की अब आने लगी है। क्लियर है इतना, कीबोर्ड हैव अ मोर देन 100 की। 100 से ज्यादा की कीबोर्ड में होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं A to Z वो अल्फाबेट्स की है, फिर 1 to 9 सॉरी 0 to 9 वो न्यूमेरिक की है,
फिर सिंबॉलिक की भी उसमें होती है, फिर F1 से लेके F12 की फंक्शन की भी होती है, फिर ऑल्टर, कंट्रोल, ऐसी सारी की भी होती है, फिर पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल करने की भी की होती है। कहने का मतलब है ये सारी कीज होके 100 से भी ज्यादा की कीबोर्ड में होती है। ठीक है, तो सबसे कॉमनली और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। ठीक है, फिर से एक बार, कीबोर्ड के थ्रू हम न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिक की, उसमें भी कैपिटल स्मॉल डाल सकते हैं, फिर उसमें हम सिंबल्स, एक्सप्लेनेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमा, वो सब कुछ हम रख सकते हैं। फिर F1 और F12 आता है जो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए यूज होता है, वो सब है फंक्शंस की। ठीक है, इस तरह से हम कीबोर्ड का यूज करके हमारा काम कर सकते हैं। और दूसरा भी एक बेनिफिट है कि जो ऑप्शंस है मेनू और उसके ऑप्शंस, उसमें ना जाना हो तो हम कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, कीबोर्ड का थोड़ा हम देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कौन सा हम देख रहे हैं? कीबोर्ड। ठीक है, तो उसमें कैपिटल लेटर्स एज वेल एज स्मॉल लेटर्स हम दे सकते हैं, फिर डिजिट भी हम दे सकते हैं, फिर F1 से लेके F12 की स्पेशल फंक्शन की भी है, फिर उसमें पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, फिर लेफ्ट एरो, राइट एरो, जिसको हम स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल की भी हो सकती है, और तो कंट्रोल, ऑल्टर, ऐसी स्पेशल की भी है। फिर आता है सिंबल्स, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, परसेंटेज साइन, ऐसे सिंबल्स वाली की भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना डेटा, ये टाइप का डेटा हम कीबोर्ड थ्रू इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा एस्केप की भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए, ये कौन सी की होती है? एस्केप की। कोई भी विंडो बंद करने के लिए या किसी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं? एस्केप की। क्लियर है इतना? ठीक है, फिर हमें कीबोर्ड में एक न्यूमेरिक कीपैड भी मिलता है। कौन सा कीपैड? न्यूमेरिक, जो राइट हैंड साइड पे होता है, छोटा सा। जब हमें सिर्फ कैलकुलेशन का काम ज्यादा हो तो हम कौन सा कीपैड यूज करते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। क्लियर है इतना? ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा एक आता है, ये हमने लिया माउस के बारे में, सॉरी कीबोर्ड के बारे में। दूसरा हमारे पास गैजेट आता है, वो है माउस। कौन सा है? माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा हमारे पास आता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। वो क्या है? हमारा माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। मतलब कोई भी आइकॉन या मेनू पे क्लिक करना है तो वो हुआ पॉइंटिंग। कोई भी आइकॉन और मेनू को ड्रॉ कर, मतलब मूव करना है तो क्या करेंगे हम? उसको ड्रैग, मूव करने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप हम उसको बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉप मतलब पेस्ट करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, हम किसी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, पॉइंटिंग भी डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, और दूसरा ड्राइंग भी बना सकते हैं। ड्राइंग भी बना सकते हैं किसके थ्रू? माउस के थ्रू। ठीक है, माउस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? तो माउस का यूज करके हम
किसी भी आइकॉन को सिलेक्ट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और हम उसका यूज करके ड्राइंग भी बना सकते हैं। जनरली माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं, बीच में एक ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए एक स्क्रॉल बार भी होता है। ठीक है, माउस में कितने क्लिक होते हैं? 2 बटन्स, लेफ्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक, और बीच में कभी कभार मिडल में, कुछ माउस में नहीं होता है, नए माउस में नहीं आते, मिडल में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील, जिससे हम स्क्रीन को अप डाउन स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है, अभी सिर्फ जो टच स्क्रीन है उसमें ज्यादातर जो माउस है वो यूज होना नहीं होते हैं, पर अगर होते हैं तो हम सिर्फ माउस को ड्रैग करें, उसके हिसाब से वो स्क्रीन स्क्रॉल होता है। ठीक है, जैसे स्क्रॉल व्हील भी दिया होता है। तो ये हमने इंफॉर्मेशन दिया माउस के बारे में। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस 2 कंपल्सरी डिवाइसेस है। अब हम कुछ एडिशनल डिवाइसेस देखेंगे, जैसे कि जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड एंड ट्रैक बॉल। ठीक है, वो है पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइसेस, माउस की तरह ही। देखो, जैसे कि आप लोग वीडियो गेम खेलते हो, बहुत पहले आता था, अभी तो जॉयस्टिक का इतना यूज नहीं होता है, पर इवन आप वीडियो गेम खेलते हो तो उसमें जॉयस्टिक का यूज होता था। ठीक है, इवन रिमोट वाली जितनी भी गाड़ी आती है कि जैसे उसके ऊपर बटन दिया होता है जिससे आप लेफ्ट मूव कर सकते हो कार को, रॉबर्ट्स को, जो छोटे छोटे टॉयज आते हैं उसमें। ठीक है, फिर आप उसको राइट मूव कर सकते हो, आप उसको स्टॉप कर सकते हो, आगे पीछे भी जाने दे सकते हो। तो ये सब क्या किसके थ्रू होता है? जॉयस्टिक के थ्रू। ठीक है, तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस में हमारे पास आता है जॉयस्टिक, फिर आता है लाइट पेन। क्या आता है? लाइट पेन। फिर आता है टच पेन। अब लाइट पेन, टच पेन, जॉयस्टिक क्या है? तो जब हम गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम के लिए वो एक आता है रिमोट। ठीक है, तो वो है जॉयस्टिक। द जॉयस्टिक इज द वर्चुअल स्टिक विच मूव्स द ग्राफिक कर्सर इन डायरेक्शन ऑफ द स्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक इज द वर्चुअल स्टिक मूव ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकली वो मूव करता है लेफ्ट और राइट को, मतलब गेम में जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तब किसका यूज करते हैं? जॉयस्टिक का। फिर हमारे पास आता है लाइट पेन, जो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होता है। आपके घर अगर कोई पार्सल आता है, या फिर अभी तो होटल्स में भी, आप होटल्स में जाते हो, मॉल्स में जाते हो बड़े बड़े, तो आपकी सिग्नेचर मांगते हैं, आपका ऑटोग्राफ मांगते हैं। अगर आपने पार्सल रिसीव किया है तो रिसीवर के सिग्नेचर मांगते हैं। तो वो पेन जो यूज होती है वो कौन सी है? डिजिटल पेन। ठीक है, पर अब तो पेन की जगह डायरेक्टली आप अपने फिंगर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो फिंगर से होता है वो है टच पेन। ठीक है, लाइट पेन मतलब डिजिटल पेन, मोबाइल में आती है। ठीक है, ड्यूअल स्क्रीन वाले जो मोबाइल होते हैं उसमें आती है लाइट पेन, जिससे आप टच करके, पेन से टच करके अपना काम कर सकते हो। टच पेन मतलब आप अपनी फिंगर से उसका यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये सब क्या है? तो ये सब एडिशनल डिवाइसेस है जिसका यूज करके हम डेटा इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है स्कैनर। स्कैनर देखा है किसी ने? क्या आता है हमारे पास? स्कैनर। जब हम जेरॉक्स करवाने जाते हैं तो जो बड़ा मशीन होता है, ठीक है, कभी कभार हमें वो कोई पर्टिकुलर आकृति या मैप ड्रॉ करना नहीं है और उसकी कॉपी बनानी है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? स्कैन करते हैं। और अभी हम सुनते हैं QR कोड स्कैन करो, ऐसा वर्ड हम सुनते हैं हमारे स्मार्टफोन में। तो हमारे पास आता है स्कैनर। इनपुट डिवाइस में दूसरा क्या है? स्कैनर। ठीक है, दूसरा क्या आता है? स्कैनर। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, ट्रैक बॉल, ये सब देखा। फिर हम इनपुट डिवाइस में आगे लेते हैं स्कैनर। स्कैनिंग डिवाइस इज डायरेक्टली लॉक एट द इनपुट एंड एंटर द कलेक्शन डेटा इन द कंप्यूटर।
ठीक है। वो क्या करेगा, डेटा किसमें डालता है, कंप्यूटर में। कलेक्शन ऑफ डेटा डायरेक्ट इनपुट इन अ कंप्यूटर, किसमें डालता है, कंप्यूटर में वो डायरेक्ट डेटा दे देता है। क्लियर है इतना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मतलब हमारे पास जो हार्ड कॉपी है, पेपर ऊपर या क्लोथ पे भी चलता है अभी, हाँ, उसको किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में, ठीक है, डेटा में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी कन्वर्ट्स टू सॉफ्ट कॉपी। क्लियर है इतना। ये किस स्कैनर के लिए याद रखना है कि जो हार्ड कॉपी है, पेपर पे जो डेटा है, उसको कंप्यूटर में डायरेक्टली इनपुट करता है। कभी कभार कोई टिपिकल स्क्रीन होता है, कोई टिपिकल फिगर होता है, फोटोज होते हैं, मैप होता है, जिसमें हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट चाहिए, तब हम उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट को जनरली हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। फोटोज है, मैप है, वो सब हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। आजकल तो क्यूआर कोड आ गया है, तो क्यूआर कोड हम स्कैन करके भेज देते हैं ताकि हमारा पेमेंट हो जाए या रजिस्ट्रेशन हो जाए, ऐसी फैशन है। तो आप सबको स्कैन करना भी आता है। फिर हमारे पास आता है स्कैनर में जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज को कंप्यूटर में डालता है। कभी कभार क्या होता है, हैंडहेल्ड स्कैनर भी आते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर भी आते हैं जो इमेज और बारकोड को स्कैन करते हैं, ठीक है, बारकोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड हेल्ड स्कैनर, जो क्या कोड करता है, क्या स्कैन करता है, बारकोड को स्कैन करता है। जैसे कोई किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी ऐसी लाइंस होती है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो हम देखते हैं कि सपोज हम मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट के आगे एक मशीन लगाता है, मशीन पे ऐसे बिप साउंड आता है, तो वो क्या करता है, बारकोड स्कैन करता है। तो वो स्कैनर क्या है, बारकोड स्कैनर या हैंडहेल्ड स्कैनर, ठीक है। छोटी बड़ी सभी दुकानों में अब ये पॉसिबल हो गया है कि कोई भी प्रोडक्ट लो तो उसके बारकोड को स्कैन करता है और आपका बिल तुरंत बन जाता है। तो वो स्कैनर है बारकोड स्कैनर, उसको हम बोलेंगे हैंडहेल्ड स्कैनर, इज ऑल्सो कॉल्ड हैंडहेल्ड स्कैनर। दिस सिस्टम इज स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम, इट्स कॉल्ड यूपीसी। दिस कोडिंग इज द स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें जो कोड्स आते हैं, सिस्टम इज स्टैंडर्ड, मतलब यूनिवर्सल पे ग्लोबली वो सिस्टम एक्टिव है, ठीक है। वो कैसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड सिस्टम। कोड सिस्टम इज स्टैंडर्ड, इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी, ठीक है। वो क्या है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। इसी कोड के तौर से, मतलब उसका यूज करके हमें हमारी प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। क्लियर है इतना। अब एक और आता है कैरेक्टर स्कैनर। क्या है, कैरेक्टर स्कैनर, यहां लिखती हूं मैं, कैरेक्टर स्कैनर, ठीक है। आपकी ओएमआर शीट है, एमसीक्यूज, ठीक है। तो एमसीक्यू कौन चेक करता है, कैरेक्टर स्कैनर। कौन चेक करता है, कैरेक्टर स्कैनर, जो एमसीक्यू चेक करता है। एबीसीडी ऑप्शन में से कौन सा सही है वो चेक करता है। फिर आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर। मैग्नेटिक इंक दूसरा स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर ICS जो है चेकबुक में
ठीक है, चेक नंबर होता है। ठीक है, चेकबुक अगर आपने देखा हो तो चेकबुक में नीचे एक ऐसे डबल एरो मतलब स्लैश करके हमें दिया होता है एक कोड। ठीक है, जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनर, और उसको बोलेंगे स्कैनर को रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे, जो है MICR, जो चेकबुक नंबर को रीड करता है। ठीक है, आप किसी बैंक में जाते हो तो चेकबुक देते हो, चेक देते हो तो उसका नंबर रीड करता है, उसके ऊपर से उसका पूरा कौन सी ब्रांच का है, कौन सी बैंक का है, वो सब स्कैन करता है। तो वो है कैरेक्टर स्कैनर। क्लियर है इतना? ठीक है, क्लियर है इतना? फिर हमारे पास और 2-3 आते हैं, यहाँ तक वीडियो रखते हैं हमने स्कैनर तक। ये सारे हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब और आगे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आप स्कैनर तक का रीड करना।